हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आई एवरेज अल्टरनेटिंग। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू। सो व्हाट इज आई एवरेज? तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है, एक सिस्टम है कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल we will do or we will find out the magnitude of alternating current AC for a complete cycle. So for a complete cycle we have to manage or find or calculate the value of alternating current. So I average is equal to the total AC for a complete cycle is called I average and EMF average 2. यानी EMF का एवरेज भी निकालना है, तो वो भी सेम तरीके से निकाला जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो I is equal to I naught sin omega t and I average is equal to I naught sin omega t का एवरेज एज फार एज आई नॉट इज कंसर्न। तो आई नॉट के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? आई नॉट इज अ पीक वैल्यू। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट बिकॉज इट इज साइनसोइडल। और आपको मालूम है कंप्लीट साइकिल में जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार 0 होता है। सो बट यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हमको एक बात देखना है कि इन पॉजिटिव डायरेक्शन ये कैसा होता है, एक बार आपका एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर भी पहुंचता है। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द वे हियर वी कैन फाइंड और वी कैन कैलकुलेट, बट देयर इज अ कंक्लूजन वी कैन टेक is I naught or E naught or V naught is the fixed value, and we can't have what the variation in it. Understand? So you can understand what we have to do here. I average is equal to I naught sin omega t average. Are you getting this? I average is equal to I naught sin omega t average, and for a complete cycle sin omega t average is,
सो यू नो 0 to 180 यानी एक हाफ साइकिल में साइन के सारे मान पॉजिटिव होते हैं, एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल जो होता है उसमें उसकी सारी वैल्यूज जो होती हैं नेगेटिव होती हैं। 0 to 180 पॉजिटिव एंड 180 to 360 नेगेटिव। यदि हम इनको ऐड ऑन करेंगे तो इसका क्या निकलेगा? 0। अंडरस्टैंड? सो एवरेज 0 upon something is 0, therefore sin omega t average is 0. So I average is equal to I naught into 0. So I average is equal to 0. In such a way, E average also be 0 and V average also be 0. Therefore, we can say for a complete cycle I average, E average and V average is 0. Okay guys, तो यहां पर हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current EMF and voltage is 0 for a complete cycle. Now you can make a pause over here, है ना, or you can write down it, or you can write with me. Understand? So you can see it, how to plan it. There is another method for I average. To find I average, E average, V average. And this is for calculus. This is all about calculus. Understand? So we will do this alternative for our knowledge. By calculus. Okay guys, so here I average is equal to integration of I dt for which timing 0 to capital T upon capital T. हमें एक पीरियोडिक टाइम के लिए निकालना है। एक साइकिल मतलब एक पीरियोडिक टाइम। तो एक पीरियोडिक टाइम में आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अंडरस्टैंड, और उसको कैपिटल टी से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल, राइट है? बट
I is equal to I naught sin omega t. Therefore, I naught sin omega t dt 0 to t, and we will take out 1 upon t, and this is integration of I naught sin omega t dt 0 to t, and here I naught upon t integration of sin omega t dt 0 to t, or I naught upon t, and it will be minus cos omega t upon omega 0 to t. So I naught upon t, here omega, and this will be minus cos omega upper limit t minus cos omega t is equal to 0. Understand? Lower limit is 0, upper limit is t, capital. So I naught upon t omega is equal to minus cos omega is equal to 2 pi by t into t minus it is plus, and it is cos 0. So I naught upon t omega is equal to minus 1 plus 1 is equal to I naught upon t omega into 0. Therefore I average is 0. In such a way, E average is 0 and V average is 0. So this method is for MathSider, and before this, इसके पहले जो हमने किया था वो बायोसाइडर्स के लिए ठीक होगा. Are you getting this? So in such a way you can manage, and again you can take a pause and note down it, or you can write with me. So it is so simple, understand? So anyone can do it, so don't bother about it. Okay guys, so
Now we are going to study about phase. Okay? Leading and lagging. Leading and lagging. Okay. So लीडिंग क्या होता है बेटा? लीडिंग क्या होता है? लीडिंग होता है कि कोई चीज आगे चल रही, लीडर बन के चल रही। और लैगिंग क्या होता है? लैगिंग क्या होता है? लैगिंग होता है कि कोई चीज पीछे चल रही है। जो चीज आगे चल रही उसके पीछे जो चलेगी वो क्या कहलाएगी? लैगिंग कहलाएगी। अंडरस्टैंड? और जो आगे चल रही है वो क्या कहलाएगी? लीडिंग कहलाएगी। तो यार बेटा, एज फार एज अल्टरनेटिंग करंट इज कंसर्न और एनी करंट इज कंसर्न, ठीक है, विदाउट ईएमएफ is it possible the production of current? No. First of all, there should be what? There should be an EMF, which is actually the potential difference between 2 points. If potential difference between 2 points, then charge can move. High potential to low potential or low potential to high potential. और यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं यार? यहां पर हमारी जो बात चलती है वो टोटल चलती है किसके बारे में? मेटालिक वायर से रिलेटेड। सो इट इज सॉलिड। और उसमें कौन होता है करंट बनाने के लिए जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? If any AC circuit, if any AC circuit current obtained its maximum value before EMF or voltage, then current is leading
voltage is lag behind current and vice versa. Have you getting this? Yes. If this is if it is I naught and this is V naught. So this is the graph of alternating current one and second graph of voltage. Understand? तो कौन पहले अपनी पीक वैल्यू ले रहा है या ऑब्टेन कर रहा है? कौन कर रहा है? करंट. This is for V and this is for Y. तो कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है. क्यों लीड कर रही है? क्योंकि सर्किट में, मेरा मतलब कल्पना करते हैं सर्किट में मतलब क्या? जब कुंडली ऑन होती है, अंडरस्टैंड, ये सप्लाई देते हैं हम एक सर्किट को जिसमें लेट कर लो कि एक कैपेसिटर लगा है. अंडरस्टैंड, क्या लगा हुआ है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उस सर्किट को हम कॉइल वाली आई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई देते हैं. तो उसमें ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि आई पहले मैक्सिमम हो जाती और वोल्टेज बाद में अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पर पहुंचता है. अंडरस्टैंड? तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए आई लीड वी. आर यू गेटिंग? यानी आई हमेशा आगे चल रही है और वी पीछे चल रहा. बोलो, समझ में आया? So this is the way where we can think about phase difference too. And what is the phase difference? Phase क्या है? फेज क्या है? फेज है फेज कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी मूविंग पार्टिकल की क्या बताती है? किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ध्यान से सुनना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी पोजीशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है. ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फेज. अंडरस्टैंड? जैसे लो,
यहां से मूव किया, फिर इधर आया, फिर नीचे गया, फिर इधर आया। ठीक है, तो T/4 पे वो कहां पे था? T/4 पे ये अपने एम्पलीट्यूड पे था, राइट है, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये साइनसोइडल होगा। ये जीरो, ये एम्पलीट्यूड लौट के जीरो, फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड और फिर जीरो। तो सोचो जरा कि हम देखना चाहते हैं कि T/4 पे कहां पे है पार्टिकल, तो हमको पता चल जाता है कि T/4 पे पार्टिकल कहां पर है? एम्पलीट्यूड। कहां पर है? एम्पलीट्यूड में है, T/4 पे। और दूसरी चीज, T/4 पे एम्पलीट्यूड पे है, और अनदर थिंग कि वो किस तरफ जाने वाला है? मेन पोजीशन की तरफ जाने वाला है। ये दोनों बातें हमको कैसी हो रही हैं? मालूम हो रही हैं। इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। और सामान्यतः जैसे I = I0 sin ω/t, तो इसमें फेज बताने वाली चीज कौन सी है? ω/t। कौन सी? यानी साइन के साथ जो भी एंगल होगा वो एंगल हमको दोनों चीज बता देगा। कौन कौन सी? मतलब कि उस समय पे वो कहां पे, T/2 पे कहां पे होगा? T/2 पे काय को होगा? T/2 पे एम्पलीट्यूड पे T/2 कहां पे आ जाएगा? वो कहां? वो मेन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगा। और कहां जाने वाला होगा? वो होगा नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ। नहीं आया समझ में? देख, ये T = 0, तो ये T0, फिर ये T/4 लौट के आया, आधा टाइम फिर लगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? T/2, फिर वो इस तरफ निकल गया, तो ये क्या हो गया? 3T/4, और लौट के यानी एक कंप्लीट करके वो यहां पहुंच गया, राइट। तो इसका मतलब चाहे तो हम T पर, हेलो, अगर हमें T की वैल्यू मालूम है कि किस टाइम पे हम जानना चाह रहे हैं, वो टाइम हमको मालूम है, तो हम ω/t में रख देंगे। T/4 है, 3T/4 है, T/8 है, कुछ भी हो, T/4 हो सकता है, T/8 हो सकता है, T/6 हो सकता है, T/12 हो सकता है, कुछ भी हो, हमें T की जगह, उसकी स्मॉल t की जगह वो वैल्यू रख देंगे, और ओमेगा को 2π/t रख देंगे, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, 2π/व्हाटसोएवर जो होना होगा वो आ जाएगा, यानी एंगल मिल जाएगा। और उस एंगल से हमको ये पता चलेगा कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल कहां है। अंडरस्टैंड? यही कारण है कि जो I, E और V के इक्वेशंस में साइन के साथ जो एंगल होता है वो हमको क्या बताता है? उस क्वांटिटी का फेज बताता है। क्या बताता है?
फेज बताता है और उसके मूव होने की डायरेक्शन भी बताता है। इसलिए साइन के साथ वाले एंगल को हम फेज एंगल कहते हैं। आर यू गेटिंग? लो, सो फेज are physical quantity which denotes the position of oscillating particle at any instant of time is called phase. ओके, अब एक नोट जो तोड़ है, हम परेशान हो जाते हैं फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। जैसे अंग्रेजी वाले सर जब पढ़ाते हैं तो कई बार वो तोड़ देते हैं कि यार इस चीज का ब्रेक ऐसे है, यहां से इतना कर लो, इसको चेंज कर लो, बस आपका काम हो गया। हमें क्योंकि वो बड़ी बड़ी भाषा समझ में नहीं आती, तो वैसा तोड़ है। तो क्या है ब्रेक? एंगल विद साइन in equation of I, E and V shows us the phase of particle. Understand? Shows the phase of particle. Therefore, this angle is called phase angle. This angle is called phase angle. Are you getting it? Right? अब if V is equal to V naught
sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus minus phi। राइट है। ये फाई क्या है? अब दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं यार, एक ने पहले मोशन स्टार्ट कर दी, तो लीडिंग कौन होगा? जिसने मोशन स्टार्ट कर दी। लैगिंग कौन होगा? तो इनके एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? हाँ, देखो V का एंगल होगा V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट है। बट I का एंगल, अब I यहां लीड कर रही, तो दिस इज I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर लीड कर रही है तो प्लस फाइव, और लैग कर रही है तो नहीं आना, राइट है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां क्या कर रहा है? V लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लैग कर रहा है, तो ओमेगा टी में से क्या घटा देंगे? ये इक्वेशन बनाना अपन को बढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंड? जो लीड कर रहा है या तो उसका ओमेगा टी होगा, अंडरस्टैंड, और दूसरे वाली लैगिंग के में से ओमेगा टी में से फाई एंगल कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इसी फाई को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हियर फाई is the phase difference। Then okay guys, tomorrow we will learn more about phase and phase difference, understand, and so many things about alternating current in easy language। So तब तक के लिए बाय, टेक केयर।